Hello students, I'm sure that you would have done your face test of advanced paper quite well. The question paper is exactly as per the entrance examinations which it comes. Few questions we always give it a little bit, easier type to see to it that the fear part in the students is not there. Now look at the question paper here. This question paper consists of section 1, and in this section 1 it contains MCQs having more than one correct answer. Okay, so in this you should be careful enough to read each and every choice properly and then answer. So the first one, look at this particular first question. What comes to your mind as soon as you see this particular question? See this part. Clearly, immediately, it gives you the idea that it is Reimer-Tiemann reaction. Yes, Reimer-Tiemann reaction only. Is it whenever we have got, say, phenol, and if we treat phenol with CHCl3 in the presence of KOH or NaOH, tell me students, what all are the products we write? We write salicylaldehyde and the para-isomer also. The para-isomer also. Okay, we write both of them. Now the mechanism is important. What is one of the stages you get over here? One of the stages you get over here is CHCl2. And here also you will get CHCl2 of this sort. H here. Okay, let me write here CHCl2. In this way we can write it down. Then the reaction proceeds. Am I right? Or I could have directly written over here also in this manner and written the answer here CHCl2 in this case. But in this question, the one which is given here, if you check up, there is a CH3 group at the para position. When there is the para position blocked over here, immediately the students think, well, the CHCl2 should not attack the para position and they will go only for which choice? They will go only for A choice. But the point over here is a small misleading one. The misleading is what? CH3 at the para position, they should not be attacked, and therefore if you see closely, you will give mark 1 only and you will not mark anything else. Question here is, can these two be formed or not formed? Definitely this cannot be formed because CH3 has migrated, which is not possible at all. But can B and C be formed over here? Definitely students, C is formed, B is not formed. The reason over here is that you will get over here a product, or you can say an intermediate substance of this sort, CH3, CH, Cl2 and double bond O. This carbon atom is tetrahedral, that is sp3 hybridized. And if it is sp3 hybridized, there is a CH3 group here and there is also a group over here. Therefore, further attack by the OH minus is not possible. Therefore, further attack by the OH group is not possible on this one. So, what happens is the formation of this part is hindered. The formation of this part is hindered. This is not formed, whereas this is going to be definitely formed over here.
That means this question is completely based upon the mechanism of Reimer-Tiemann reaction. So every student should know each step of Reimer-Tiemann reaction. Now, I just would recall what all are the most important points in this Reimer-Tiemann reaction. What is the main important point here, students? See here, in this case, 1 minute. In this case, what happens is, you have got CHCl3. On reaction with KOH, this form CCl3 minus. CCl3 minus is formed, and this CCl3 minus which is there is going to give rise to CCl2 dot, which is what is called as dichlorocarbene. Dichlorocarbene. Okay. Carbene intermediate is formed. This intermediate definitely will be formed. After that, what happens is, we have got the phenoxide. Why phenoxide? Because phenol would have reacted with KOH to form phenoxide ion plus H2O. Phenoxide ion would have been formed, and then now CCl2 dot attacks here, comes here, gives rise to what? It gives rise to such a species H and CCl2 minus. Now H2O is there. From here, this one can attack this H positive, thereby giving rise to a species of this sort H and CHCl2. So this is the intermediate substance which is formed. Then further afterwards, OH minus reacts with the CHCl2 part, and if it reacts with the CHCl2 part, you will get then what species, students, here? HCHO. Okay, further then aromatization takes place and the compound is formed. So students, this definitely is one of the substance formed. So keeping that in mind, you can say here, well, this will be definitely formed. Now you would say, sir, is there not much of steric hindrance here? No, because this system is completely planar system. There is no CH3 group over here, but in this case there is the CH3 group, therefore OH minus attack is not possible on this carbon atom. Am I clear to you? So the first question is over. Let us go to the next question. If we go to the next question here, phenol and ethanol can be distinguished by which of the following? Definitely, we should know this part, students, here. Phenol and ethanol can be distinguished by which of the following? Bromine water will be decolorized by phenol or not? Yes, bromine water test will be given by phenol. Is that clear? NaNO2 reaction will be given by phenol or not? Yes. Let us write down those equations now. Phenol will react with bromine water, with bromine in the presence of water, will give rise to tribromophenol. We have done this already. Can ethanol give? No. If ethanol was there, if I have ethanol, yes, it can react with bromine in the presence of OH minus to give rise to CHBr3 plus HCOOH. That is possible only with OH minus, not with bromine water. Therefore, I can use this test to distinguish. NaNO2 reaction. What happens with NaNO2? So, let us try to go for NaNO2 reaction, students, here. If I want to go for the NaNO2 reaction, please see here, phenol is there
I am reacting it with NaNO2 in the presence of HCl. What is the product formed? The product formed over here is para-nitroso derivative. Para-nitroso derivative. How? See here. Nitrous acid. How do I write this part? NaNO2 is there. Let me write here. NaNO2. NaNO2 plus HCl will give rise to HON double bond O. Okay. HCl is still there. NOH NO. Now, in the presence of HCl, it gives rise to NO positive plus H2O. It is an electrophile, students. Therefore, in this case, the phenol will react with NO positive to form para-nitroso derivative. Para-nitroso derivative. Therefore, we can say here that yes, the reaction is given by phenol. Phenol gives this reaction. Phenol gives this reaction. Yes, neutral ferric chloride reaction is also given by phenol. You know it. Yes, sodium bicarbonate reaction does not take place. You may say, sir, phenol is acidic. Why can't it liberate carbon dioxide from NaHCO3? What happens is, if you have phenol and it reacts with NaHCO3, it will give rise to sodium phenoxide, okay, plus H2CO3. Acidic strength of H2CO3 greater than phenol. So, backward reaction possible. Backward reaction possible. Okay, so no forward reaction. अब देखिएगा, फिनॉल लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है. ये डिसोशिएट करके ये बनाएगा. ओके, ये रिएक्ट करके ये बनाएगा. स्टूडेंट्स, दिस विल फॉर्म this part of it. What? See here, it will form here this one. Therefore, backward reaction possible, forward reaction not possible. So, question number 2 over. Now, we go to the next question. Halides which will give precipitate with AgNO3. इसके अंदर आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सोचेंगे तो जरूर आपको याद आ गया होगा. वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? यहां पर जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा. अब ये कंपाउंड है मेरे पास. ओके, लेट मी रब दिस पार्ट एंड राइट अगेन. सी हियर. नाउ क्लोरोबेंजीन है. क्लोरोबेंजीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो कॉन्जुगेट करते हैं. कॉन्जुगेट करने की वजह से क्या हो गया कि ये CCl बॉन्ड टूट नहीं सकता कभी भी. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, बॉन्ड एनर्जी हाई हो गई, इस जिसकी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल है. इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर कम्स अप, सर क्या ये पॉसिबल है? ये वाला पॉसिबल है क्या? हाँ, ये वाला जरूर पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर क्यों ये पॉसिबल है करके. क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो होगा CH2 पॉजिटिव. अब दिमाग के अंदर आता है क्या, सर कैसे? ये OMe है. OMe इज अ माइनस आई ग्रुप एट द मेटा पोजीशन, तो ये बन नहीं सकता, ये डिस्टेबलाइज है. डिस्टेबलाइज हुआ. When compared to these two, it is less stable. इनके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है.
ये कार्बोकेटाइन इन दोनों के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, हम अगर थोड़ा सा बन सकता है। यहां पर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं पूछा, हमने पूछा है क्या ये दे सकता है, हां टू सम एक्सटेंट इट गिव्स। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है मगर जरूर ये बनेगा। ओके, जिसके वजह से हम यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहां का कार्बोकेटाइन कहां बना, क्या बना स्टूडेंट्स, ये वाला ऐसे है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहां पर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया और ये स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से ये भी देगा। अब ये क्या है, ये ऐसा है और ये कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई ऑल थ्री ऑफ देम, this one and this one will give, but the rate of the reaction अगर हम देखते हैं तो D will be more reactive than C, more reactive than B. B will also give. B will also give to some extent. More fastest is going to be what? D. Less faster? C. Very less faster? B. Because इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ी सी कम है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा है। It is something like a alkyl halide. Any alkyl halide will give silver nitrate test. यही पॉइंट है। It is something like an alkyl halide, therefore it will give this test. Now next question. इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हो, if the same quantity of electricity is passed through three different electrolyte solutions, और वो three different electrolyte solutions क्या है स्टूडेंट्स, तीन हैं, FeSO4 है, Fe2SO4 whole thrice है, FeNO3 whole thrice है, then which of the following statements are correct? ध्यान से देखते हैं इसको, ध्यान से देखो, फंडा क्या यूज करना चाहिए, हमेशा याद रखना फैराडेज लॉस के अंदर मैंने हमेशा ये कहता हूं, नंबर ऑफ इक्वलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सो नंबर ऑफ फैराडेज सेम होंगे, तो नंबर ऑफ इक्वलेंस ऑफ आयरन deposited from each solution will be same. मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ इक्वलेंस ऑफ आयरन कहा, मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं कह रहा। अगर नंबर ऑफ इक्वलेंस है तो क्या करें, by number of equivalents of Fe2 plus will be equal to number of equivalents of Fe3 plus. Number of equivalents of Fe2 plus is equal to number of equivalents of Fe3 plus. अब क्या करेंगे, W1 by E0 of Fe2 plus is equal to W2 divided by E0 of Fe3 plus. अब E0 from Fe2 plus will be atomic mass divided by 2. E0 from Fe3 plus will be atomic mass by 3. तो अब यहां पर लिखते हैं W1 by atomic mass by 2 is equal to W2 by atomic mass by 3. इसका मतलब ये हुआ W1 into 2 divided by atomic mass is equal to of iron is equal to 3 times W2 divided by atomic mass of iron. तो ये atomic mass of iron मैंने कैंसिल कर दिया, 2W1 is equal to 3 times W2, so W1 is equal to 3 by 2 times W2, यानी कि amount of Fe2 plus deposited as iron or discharged, amount of Fe2 plus discharge will be equal to 1.5 times
the amount of Fe3 plus discharged. Is that clear? So the amount of Fe2 plus discharge is going to be equal to 1.5 times the amount of Fe3 plus discharged. ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर दे आते हैं. अगर मैंने क्वेश्चन के ऊपर देखा ये चीज, भाई द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड FeSO4, Fe2SO4, will it be same? No. But the amount of iron deposited from FeSO4 is 1.5 times that from FeNO3. True. अब कहता है the amount of iron deposited from Fe2 plus and FeNO3 whole thrice same. Why? Because number of equivalents of Fe3 plus in Fe2SO4 whole thrice is equal to number of equivalents of Fe3 plus in FeNO3 whole thrice. इसको मैं दोबारा लिखता हूं स्टूडेंट्स. Let me write it again, this whole part, because it has gone in a corner. मैं अब ध्यान से दोबारा लिख रहा हूं. यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि number of equivalents of Fe3 plus from Fe2SO4 whole thrice is equal to number of equivalents of Fe3 plus from FeNO3 whole thrice. Therefore, amount of Fe3 plus deposited from both same. पहला पॉइंट. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सी चॉइस भी करेक्ट. अब क्या डी चॉइस करेक्ट है? इसको देखते हैं हम. अगर हम डी चॉइस देखते हैं तो भाई ये यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर ये है गैस इवॉल्व बाय FeSO4 है, Fe2SO4 होल थ्राइस है और FeNO3 होल थ्राइस है. क्या SO4 2 माइनस डिस्चार्ज होगा? नहीं. क्या NO3 माइनस डिस्चार्ज होगा? नहीं. क्यों? बिकॉज डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस लेस देन डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ NO3 minus less than discharge potential of SO4 2 minus, जिसकी वजह से सिर्फ OH माइनस डिपॉजिट होगा सब सॉल्यूशन में से और इलेक्ट्रिसिटी सेम है. तो इसका मतलब जब OH माइनस डिस्चार्ज होगा सभी सॉल्यूशन में से, चाहे वो FeSO4 हो या Fe2SO4 होल थ्राइस हो या FeNO3 होल थ्राइस हो, सब में से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस जो डिपॉजिट होंगे या डिस्चार्ज होंगे वो सेम होंगे. देयरफॉर द O2 लिबरेटेड विल बी सेम. The O2 liberated will be same. So I can say that amount of O2, or you can say volume of O2 liberated will be same. Will be same. Okay, fine. We can go now for the next question. The galvanic cell started with the passage of time. एक गैल्वेनिक सेल है, उसे हम यूज करते हैं. जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? भाई ये लिखा है यहां पर पहला पॉइंट, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद ई सेल डिक्रीज. क्या ये सही है? जैसे जैसे सेल फंक्शन करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ई सेल डिक्रीज करेगा
अगर ई सेल डिक्रीज करता है तो डेल्टा जी भी कम नेगेटिव होता जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। सो ई सेल डिक्रीजेस, डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी कि लेस स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ए चॉइस सही। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो करके, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये तो ठीक है यार, हो गया डिक्रीज करके। इसमें हम गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं लिख के करो। लिख के करोगे तो प्रैक्टिस करते समय जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे होते जाएंगे, उसके बाद में आप चाहे लिखो ना या ना लिखो तो बात नहीं है। अब बिगिनिंग स्टेज में लिखना चाहिए आपको। अब ये रिएक्शन कोशेंट क्यू डिक्रीजेस विद ई सेल इंक्रीजेस। ई सेल इंक्रीज कर रहा है, ई सेल इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन कोशेंट डिक्रीज करता है करके कह रहा है। ये क्यों भैया? अब इसको देखते हैं। अगर मैंने एक सेल लिया, कौन सा वाला सेल लिया? सपोज करो मैंने एक सेल लिया जिंक सॉलिड Zn2 प्लस C1 कॉन्सेंट्रेशन, Cu2 प्लस C2 कॉन्सेंट्रेशन, Cu सॉलिड, ये ले लिया। अब अगर मैं ई सेल लिखूं, ई सेल कितना होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब अगर आप देखते हैं सेल यूज होता गया, सेल यूज होता गया, याद रखना एक पॉइंट कि सेल अगर यूज होता गया तो एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। अगर एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn जो सा है Zn2 प्लस बनाएगा। तो इसका मतलब यह है Zn2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब कैथोड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है। कैथोड के अंदर रिडक्शन होने की वजह से Cu2 प्लस जो सा है 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके Cu बनाएगा। तो इसका मतलब Cu2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, जिसे हम कहते हैं Q। Q क्या कर रहा है? Q इंक्रीज कर रहा है। अगर Q इंक्रीज करेगा तो ये देखिएगा यहां पर ये फैक्टर जो सा है वो डिक्रीज करना, वो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इंक्रीज करेगा बिकॉज दिस फैक्टर इंक्रीज, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करेगा तो ई सेल डिक्रीज करेगा। देयरफॉर Q इंक्रीजेस, ई सेल डिक्रीजेस, Q डिक्रीजेस, ई सेल इंक्रीजेस। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरी बात ये एक और याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गया, अब इसका मतलब इसके अंदर ये सही है बच्चों, Q डिक्रीज कर गया तो E इंक्रीज करेगा। अभी हमने देखा था, ये देखो इसके अंदर Q डिक्रीजेस, E इंक्रीजेस, Q इंक्रीजेस, E डिक्रीजेस, Q डिक्रीजेस, E सेल इंक्रीजेस, Q इंक्रीजेस, E सेल डिक्रीजेस। वही हमने यहां पर लिखा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर Q डिक्रीजेस, E सेल इंक्रीजेस, Q इंक्रीजेस, E सेल डिक्रीजेस। अब इसका मतलब ये सही, ये सही, ये सही, क्या ये सही है? अब क्या होता है जब E सेल 0 है तो डेल्टा G 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा G 0 है तो याद रखना कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉग
Q, and when delta G approaches 0, Q approaches K equilibrium, therefore क्या हो जाता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये चॉइस भी सही हो गया। मतलब यह है कि ए बी सी डी सारे चॉइसेस सही चॉइसेस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ओके फाइन। So now let us go for question number 6. Look at this question number 6 over here. Which of the following solutions are expected to be isotonic with 6% weight by volume? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, weight by volume 6%. Isotonic means same osmotic pressure. अगर same osmotic pressure है so tau 1 is equal to tau 2. अगर tau 1 is equal to tau 2 है, remember one thing, I1 C1 should be equal to I2 C2 which is equal to I3 C3 etc. याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना आप, दैट इज tau is equal to ICRT। और आइसोटोनिक के लिए हमेशा IC की वैल्यू देखना। तो इन क्वेश्चन के अंदर हम पहले I की वैल्यू देख लेते हैं। I क्या है? ग्लूकोज यूरिया के लिए I वैल्यू 1 होता है, ग्लूकोज के लिए I वैल्यू 1 होता है। ओके, फिर NaCl के लिए I वैल्यू 2, वाई? एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन। एसिटिक एसिड के लिए भी I वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों ग्रेटर देन 1 होगा? I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा है, अगर मैं इसको 100% डिसोसिएशन सोचता हूं तो तभी I इज इक्वल टू 2 हो सकता है। मगर एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे को अल्फा को 1 नहीं ले सकते, बट अल्फा विल बी स्लाइटली, therefore I will be definitely greater than 1. Why? Because this is equal to 1 plus 2 minus 1 into alpha. Alpha is less than 1. तो definitely it will be greater than 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब डायरेक्टली मैं कह सकता हूं ये तो नहीं हो सकता। अब क्या ये दोनों हो सकते हैं? देखते हैं स्टूडेंट्स। अब वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है तो अच्छी बात है। बाय 6% का मतलब क्या हुआ? 6% मीन्स ओवर हियर 6 ग्राम्स इन 100 ml, यानी कि 60 ग्राम्स इन 1000 ml। एंड यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो इसका मतलब ये भी 1 मोलार हो गया। अब यूरिया, अब इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? ये सॉल्यूशन 1 मोलार हो गया। ठीक है, अब ये भी 1 मोलार, I इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी I इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये भी 1 मोलार है, ये भी 1 मोलार है, तो ये C करेक्ट होगा। अब देखते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन का। अगर मुझे ग्लूकोज सॉल्यूशन का देखना है तो ग्लूकोज क्या दिया हुआ है? 18% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 18 ग्राम्स इन 100 ml, यानी कि 180 ग्राम्स in 1000 ml, and molar mass glucose is equal to 180, therefore 1 mole in 1000 ml, 1 mole in 1000 ml आ गया। इसका मतलब ये भी 1 मोलार है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी 1 मोलार है, 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 और यूरिया सॉल्यूशन भी 1 मोलार है। तो इसका मतलब I की वैल्यू कंपेयर कर लो।
अब I इसके लिए क्या है? I is equal to 1 here. Here also I is equal to 1. Here I is equal to 1. Here I is equal to 2. Here I greater than 1. इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोनिक के लिए I into C और I1C1 should be equal to I2C2. That is possible only for urea, glucose and sucrose solution whose molarities are same. तो इसका मतलब आंसर A एंड C दोनों करेक्ट आंसर्स हो गए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 के अंदर 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चंस दे आर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसका मतलब डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या हो सकते हैं यहां पर? दैट इज विच ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी डूइंग दिस रिएक्शन, दैट रिएक्शन एक्सेट्रा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन in NaOH. That means haloform reaction or iodoform reaction. Iodoform reaction के अंदर याद रखना CH3 CHXG, CH3 CHOH G, CH3 C double bond O G। अब ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो से हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि इनके अंदर ये ग्रुपिंग का होना जरूरी है। इस ग्रुपिंग का होना जरूरी है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सर जी क्या हो सकता है? जी कैन बी H एटम और जी कैन बी एल्काइल ग्रुप, एनीथिंग। तो सारे क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये लगता है हमारे को कि ध्यान से देखो, क्या ये सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को? नहीं। क्या ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को? क्या कंडीशन है? CH3 CHXG, CH3 CHOH G, एंड CH3 C डबल बॉन्ड OG। ये सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, ये करता है क्या? देखेगा CH3 CHOH CH3, हां करता है। ये टर्शरी ब्यूटानॉल, टर्शरी ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? CH3 CH3OH। क्या ये करेगा? नहीं, CH का होना वहां पर जरूरी है, टर्शरी ब्यूटानॉल नहीं करता। अब इसका मतलब 1, ओके, ये करेगा नहीं, ये करेगा 2, ये करेगा 3। अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड, ये करेगा क्या? ये वाला ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा क्या? देखते हैं CH3 CH Cl2, ये OH माइनस के प्रेजेंस के ऊपर CH3 CHOH OH बनाएगा, जो डिहाइड्रेट होके CH3 CHO बनाएगा। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। हाँ, इस फैक्टर को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब अब मैं इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट्स, और एक एक करके लेते हैं क्वेश्चन को। मिटा के हमने देखा कि क्या क्या कर सकता है करके भाई। अब एक एक करके दोबारा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, कर लिया, ये देगा। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या आएगा? पीएच है, पीएच CH Cl CH3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन हैलोजन का कंडीशन, यानी कि 1 2 3। अब सवाल यह है कि ये एस्टर करेगा क्या? नहीं, एस्टर नहीं करेगा। अब इसको देखो, इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, हां भाई ये जरूर देगा।
क्यों ऐसा ग्रुपिंग आ गया, ऐसा ग्रुपिंग आ गया, इसका मतलब ये है 1 2 3 4, यानी कि आंसर 4 होगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चले जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर रिएक्टिव और मोर एसिडिक देन क्रेसॉल। सवाल यह है कि मोर एसिडिक देन क्रेसॉल। क्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल का क्या स्ट्रक्चर है? ये है पैराक्रेसॉल का स्ट्रक्चर। पैराक्रेसॉल ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप एट द पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो अब माइनस आर ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे, प्लस आर ग्रुप्स डिक्रीज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज CHO ग्रुप, CN ग्रुप, Cl ग्रुप, F group, they are all deactivating. They are all deactivating groups. Deactivating groups will increase the acidic strength. अब यहां पर H है, यहां पर CH3 था, इसका मतलब फिनॉल भी इंक्रीज करेगा, ये भी करेगा, मगर ये प्लस आर ग्रुप है। यहां पर हाइपरकॉन्जुगेशन है मगर कम होगा, इसका मतलब 1 2 3 4, okay, then 5, then 6 and then 7, because slightly more acidic कर देगा। कौन सा? ये वाला। इसका मतलब आंसर आ गया हमारे लिए। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स? 7 आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर चले गए, HiO4 के साथ रिएक्शन। HiO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। HiO4 के साथ, रिमेंबर HiO4 याद रखना हमेशा CHOH विसिनल डायऑल को ब्रेक करेगा, विसिनल ऑक्सो कंपाउंड्स को, विसिनल अमीन्स को ब्रेक करेगा, और विसिनल हाइड्रोक्सी है, कीटोन है, उसको भी ब्रेक करेगा। ब्रेक करके हमारे को क्या करना है? OH OH डाल देना। ब्रेक किया, OH OH डाल दिया, ब्रेक किया, OH OH डाला, और उसके अलावा यहां पर भी OH OH डाल दो। तो यहां पर क्या होगा? ब्रेक हुआ, OH हुआ, OH हुआ। तो ये फंडा यूज करके हम आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, अगर ये फंडा यूज करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या हुआ? ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, OH आया, OH आया। अब दूसरा, ये वाला ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, OH, यहां पर पहले से भी OH, यहां पर भी OH। तो अब हम इस पोर्शन को हम लेते हैं CH3 CH OH OH। इस पोर्शन के अंदर क्या हो गया? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर OH आया तो यहां पर भी एक OH आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? HC OH OH OH। अब यहां से क्या आया? HC OH OH OH। अब यहां से क्या आया? H2C OH OH, यानी कि ये बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड, ये भी बनाएगा फॉर्मिक एसिड, और ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड। पूछा क्या है? फॉर्मिक एसिड कितने बनते हैं? फॉर्मिक एसिड अब कितना बना स्टूडेंट्स? यहां पर 1 2, देयरफॉर आंसर आ जाता है 2 इसके अंदर। ठीक है, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखते हैं, इसको ध्यान से देखो, यहां तक ही जा रहा है क्योंकि इसने पूछा है E0 ऑफ FeO4 2 माइनस टू Fe2 प्लस, Fe नहीं पूछा, therefore ये दोनों पोर्शन ही लेने चाहिए। अगर ये दोनों पोर्शन लेते हैं तो लिख लेते हैं अब हम FeO4 2 माइनस गिव्स Fe3 प्लस गिव्स Fe2 प्लस, दिस वे, ये रख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर n वैल्यू कितना हुआ, n वैल्यू 3, यहां पर n वैल्यू कितना हुआ, n वैल्यू 1। क्यों, देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, +6, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, चेंज फैक्टर कितना, 3n। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो n 1 हो गया। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो +6 से +2 है, तो n हो गया 4, तो n1 3, n2 1 और n3 इक्वल टू 4, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर पाथ फंक्शंस, प्लीज नोट, E और E0 are path functions, not state functions. They are not state functions. Therefore, they cannot be added or subtracted directly. Therefore, they have to be converted to state functions. State function क्या है, डेल्टा G है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर इसके लिए मैंने डेल्टा G1 कर दिया, इसके लिए मैंने डेल्टा G2 कर दिया, इसको मैंने कह दिया डेल्टा G3, इसका मतलब डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। G0 कर देते हैं यहां पर, G0 ये लिख लिया स्टूडेंट्स, डेल्टा G0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लिख लिया। अब अगर ये है तो अब हम दोबारा इस इक्वेशन को लिख देते हैं स्टूडेंट्स, FeO4 2 माइनस Fe3 प्लस Fe2 प्लस, यहां से यहां डेल्टा G0 1, डेल्टा G0 2, डेल्टा G0 3। अब हम कहते हैं डेल्टा G0 3 इज इक्वल टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2, यानी कि माइनस N3F E0 3 इज इक्वल टू माइनस N1F E0 1 प्लस माइनस N2F E0 2, ये लिख लिया। अब माइनस F कॉमन है, माइनस F कॉमन है तो मैंने लिख दिया N3 E0 3 इज इक्वल टू N1 E0 1 प्लस N2 E0 2। तो अब हम लिखते हैं N3 कितना था स्टूडेंट्स, N3 4 था, N1 3 था, N2 1 था। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 E0 3 इज इक्वल टू 3 E0 1 प्लस E0 2, ये लिख लिया। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, 4 E0 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.2 प्लस 0.78, यानी कि वैल्यूज पॉजिटिव ही दिए गए हैं। तो 4 E0 3 इज इक्वल टू 6.6 प्लस 0.78, यानी कि अगर हम इसको
रफ में लिख लेते हैं 6.60 प्लस 0.78, तो आ गया यहां पर 8, यहां पर 3, यहां पर कितना आ गया 7, यानी कि 7.38 आ गया। क्या 4E03, यानी कि E03 हो गया 7.38 डिवाइडेड बाय 4। अब कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 4 1s are 4, 0.33, 4 8s are 32, 32 आ गया, इज दैट 33, तो फिर 18 आ गया, 4 4s are ओके 16, 4 5s are 1.845 स्टूडेंट्स। अब पूछ रहा है यहां पर आंसर कैसे? 1000x। 1000x का मतलब, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि 1.845 into 1000 which is equal to 1845। लिख लेना स्टूडेंट्स यहां पर 1845। ओके, सो आंसर विल बी 1845। Is that clear students? 1845 is the value answer. So now we go to the next question. Yeah, very important. This I'm going to calculate one by one, and please see to it that you note down these calculations properly. This calculation is very important. Here, note it. During electrolysis, during discharge, सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो सी है 1.3 1.2 है हो जाती है, 1.3 बन के 1.2 डेंसिटी हो जाती है, और 1.3 जोन सा है 40% एंड दूसरा वाला 1.2 जोन सा है वो 20% बाय वेट है। और बैटरी के अंदर वॉल्यूम कितना है? इतना है। डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हम स्ट्रेंथ में चले जाते हैं, या डायरेक्टली आप कहते हैं स्ट्रेंथ निकालो, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ले लो, जो मर्जी ले लो। क्या करेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट W क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। बट मास डेंसिटी कितना हुआ? वेट बाय मास बाय वेट इज इक्वल टू 40% है, तो इसका मैंने 40% ले लिया पहले का। सो डेंसिटी कितना था पहले का? 1.3। ओके, वॉल्यूम कितना है? 3.5 लीटर्स, यानी कि 3500। अब मास ये हो गया, मास हो गया ये उसका 40%, इसका मतलब 1.3 इंटू 3500 इंटू 40/100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन द वैल्यू comes out to be equal to, I have done the calculation and kept over here, the value comes out to be equal to a very important point, please write it down. The value comes out to be equal to how much? ठीक है, करो 1.3 into 3500 into 40/100 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1.3 into 335 into 40/100, 0 कैंसिल कर गए, तो वैल्यू क्या आ गया? 1820 आ गया, 1820 आ गया, 1820 आ गया। The value of this part comes out to be equal to 1820। तो एक जगह पे लिख लेते हैं 1820। ओके, अब दूसरे वाले का कैलकुलेशन। अगर हम दूसरे वाले का कैलकुलेशन करते हैं तो अब वैल्यू कैसे आएगा स्टूडेंट्स? यहां पर 1.2 इंटू अब 3.5 यानी कि 3500 ml, उसका 20% आ गया, 20% आ गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 2.4
इंटू 10 इंटू 35। अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, द वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 840। ये वैल्यू आ जाता है इक्वल टू 840, ये 35 है, 35 आंसर आ जाता है 840। पहला क्या मास था? 1820 पहला मास था। दूसरा मास क्या है? 840। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स ओवर हियर, ओके, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया और ये 9 आ गया, ओके। देयरफॉर आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू हियर हाउ मच? 980 grams of sulfuric acid has got discharged, यानी कि 980 ग्राम डिस्चार्ज हो गए, डिक्रीज हो गया मास, ओके। अगर 980 ग्राम्स हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 discharged is equal to how much? 98 divided by 98, 980 divided by 98 is equal to 10 moles, 10 moles। अब इस पोर्शन को ध्यान से देखेगा, ओके। आई अगेन रिपीट, दिस पोर्शन प्लीज सी प्रॉपर्ली, दिस पोर्शन यहां पर क्या है? 4 moles H plus ions, 4 moles H plus ions का मतलब 2 moles H2SO4। अगर 2 moles H2SO4 है तो उसके लिए हमें चाहिए 2 Faradays ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 moles के लिए 2 Faradays। अब हमारे पास कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं, तो 10 मोल्स के लिए कितने फैराडे चाहिए? 10 फैराडे चाहिए। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज इक्वल टू 10 फैराडे विच इज इक्वल टू 10 इंटू 96500 कूलम्स, यानी कि 965,000 कूलम्स आ गया। अब रिपोर्ट कैसे करना है? आंसर को रिपोर्ट करना है लाइक दिस, यहां से देखिएगा ध्यान से, रिपोर्ट करना आंसर को इस फॉर्मेट के अंदर, a इंटू 10⁻³ a विल बी, तो 965,000 इज इक्वल टू 965 इंटू 10⁻³, सो आंसर आ गया 965 आंसर इसका। तो आंसर कितना आ गया? 965 इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन के अंदर चले जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, 1000 grams ऑफ 1 molar सोल्यूशन सुक्रोज लिया है, सुक्रोज लिया है भाई, इसके लिए आई वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, पॉइंट। अब इट इज कूल्ड टू -7.44 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड? जब भी कितना आइस सेपरेट हुआ करके पूछते हैं तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। दो द मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी गिवन, इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, यू शुड रिमूव दैट। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा मास ऑफ द सॉल्वेंट को कैलकुलेट करो, और जो गिवन मास होगा सॉल्वेंट का, वहां से जो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपने कैलकुलेट किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलते हैं हम फॉर्मूला के लिए। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। फिर I को मैं कहता हूं 1 है, तो मैंने कह दिया KF इंटू M। अब 1 M तो दे ही दिया उसने 1 मोलर सोल्यूशन करके, इसका मतलब हम कहेंगे कि 1 मोल व्हाट इज इट कॉल्ड? सुक्रोज इन W ग्राम सॉल्वेंट, इन W ग्राम सॉल्वेंट, 1 मोल सुक्रोज इन W ग्राम सॉल्वेंट। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर? KF कितना है? 1.86
डेल्टा टीएफ कितना है भाई 7.44, 1.86 इंटू 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 कर दिया, इंटू 1000। अब W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.44। ओके 4 कैलकुलेट करिएगा आंसर स्टूडेंट्स इसके लिए। What will be the value coming out to be equal to? W value will come out to be equal to how much? This will come out to be equal to how much? 250 grams. कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेट करके 250 ग्राम्स आ जाता है तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर W वेट ऑफ सॉल्वेंट लेफ्ट इज इक्वल टू 250। कितना अमाउंट था पहले, वेट सॉल्वेंट बिफोर इज इक्वल टू 1000, वेट सॉल्वेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू हाउ मच 250। सो वेट ऑफ आइस separated is equal to 1000 minus 250, answer 750. Please check up, the answer will be 750. Now we go to the next question. Next question, check up here. He is asking here that 75.2 grams of phenol is added to 1 kg of solvent and the depression in freezing point is 7। तो मतलब डेल्टा टीएफ दोबारा दे दिया 7 और केएफ कितना दिया है, केएफ दे दिया 14। अब कितना एसोसिएशन होगा, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम करेंगे, जिससे आई कितना हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम। अब एम कितना होगा स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू वेट सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट सॉल्वेंट। अब वेट सॉल्वेंट कितना दिया है 1 kg यानी कि 1000, ये हो जाएगा 75.2। 94 है मॉलिक्यूलर मास फिनॉल का, फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है 94, ठीक है। ये इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि m हो जाता है हमारे लिए 75.2 डिवाइडेड बाय 94। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 14 डिवाइडेड बाय 7 into 75.2 divided by 94, which is nothing but going to be equal to how much, 14 into 94 divided by 7 into 75.2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू निकालिएगा। I की वैल्यू कितनी आती है ये देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? ये क्या रहेगा, ओ मैंने गलती कर दी, ये रिकॉर्डिंग गलत कर दिया मैंने, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन गलत कर दिया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन गलत कर दिया, दोबारा कर, सब्स्टिट्यूशन गलत कर दिया मैंने बच्चे, ओके।
तो नाउ फ्लो नहीं आ रहा, छूट गया मैसेज, सब्स्टिट्यूशन में गलती कर दी। वन सेकेंड, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को जस्ट कह रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन हो गया, आंसर कितना। नाउ स्टूडेंट्स, in this question we found that the amount of the ice which separated out was 750. Now we go to the next question. In the next question here, look at this part. 75.2 grams of phenol is taken, and in the 75.2 grams of phenol, what happened was it was dissolved in 1 kg of solvent, and the freezing point was observed to be 7, and the kf value is equal to this much. Use the formula delta TF is equal to I into KF into M. अब देखते हैं डेल्टा TF कितना है स्टूडेंट्स, डेल्टा TF कितना है, वो है 7, KF कितना है 14। अब हम देख सकते हैं I is equal to डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF into M, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। उससे पहले the molality of the solution has to be found out. Molality कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, molality is equal to weight solute divided by molar mass solute multiplied by weights multiplied by 1000 okay, divided by again weight of solvent। तो ये कितना आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 75.2 डिवाइड बाय 94, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फिनॉल इज इक्वल टू 94 इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000, ये आ गया इक्वल टू 75.2 डिवाइड बाय 94, ये आ गया ये। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा टीएफ 7 है, ये 14 है, और m कितना है 75.2 बाय 94 है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू स्टूडेंट्स, 7 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 75.2। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, जस्ट नोट इट डाउन, द वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू the value comes out to be equal to 0.625, 0.625 आ गया। अगर वैल्यू आ गया 0.625, ये देखेगा I is equal to 0.625 which is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha, that is equal to 1 plus 1 by 2 minus 1 into alpha, that comes out to be 1 minus alpha by 2। इसका मतलब ये हो गया it is going to be equal to 1 minus 0.625 is equal to how much, alpha by 2, यानी कि ये हो जाएगा 0.375 is equal to alpha by 2, यानी कि this comes out to be alpha is equal to 0.75, alpha is equal to 0.75, और ये पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.75 है, तो परसेंटेज कितना हो गया 75%, आंसर हो गया 75%। Okay, answer came out to be 75%. We now come to the last segment, that is segment 3 or section 3. And the section 3, it is about aromatic nucleophilic substitution reactions which proceed via benzene mechanism. Okay, which proceed via benzene mechanism, he says. If they are proceeding via benzene mechanisms over here, question is which of them will be most reactive, etc. The reactivity or now in this case don't use benzene mechanism because we have got a highly deactivating group। जब भी deactivating groups होंगे strong minus R groups, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डायरेक्टली हो जाते हैं, SN2 मैकेनिज्म्स आ जाता है इसके अंदर। देयरफॉर इट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांगली इट कैन बी रिमूव्ड। इट डिपेंड्स लाइक दिस, सपोज करो मेरे पास ये एक X है, ये N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड
O है, ये पाइलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, ये पाइलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली हो सकता है। 3 है ऐसे, सो मोस्ट रिएक्टर, थोड़ा सा लेस रिएक्टर। अब ये इन दोनों में सेम है, NO2 ग्रुप सेम है, मगर सवाल यह कि ये Cl है और ये Br है, Br का लीविएबिलिटी ज्यादा होता है। देयर आंसर विल बी 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1, therefore answer is A choice, answer is A choice। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंपाउंड जोन सा है, इट विल अंडरगो बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। अगर बेंजाइन मैकेनिज्म है, पहले देखिएगा, CH3 एक प्लस साई ग्रुप है और यहां पर मेरे पास Cl है, यहां पर H है, यहां पर भी H है। पहले मैंने ये वाला लगाता हूं, NH2 माइनस H को लेता है, ये यहां पर आया तो बेंजाइन बना, बेंजाइन बनेगा स्टूडेंट्स यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। बेंजाइन्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन मत लेना, बेंजाइन्स के अंदर हमें लेना चाहिए प्लस साई इफेक्ट ही। प्लस साई इफेक्ट लेते हैं तो प्लस साई ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। NH2 माइनस है, NH2 माइनस यहां पर अटैक करता है तो ये यहां पर आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, CH3 यहां पर आया और NH2 यहां पर आ गया। अब अगर बाय चांस अगर मैंने NH2 माइनस को यहां पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो अब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर नेगेटिव चार्ज और NH2 यहां पर CH3। अब बताइएगा ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? ये प्लस साई ग्रुप है, प्लस साई ग्रुप है, ये प्लस साई ग्रुप है, यहां पर माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज दूर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज पास है, तो ये अनस्टेबल बन गया, अनस्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसके बनने के चांसेस मैक्सिमम है। देयरफॉर द प्रोडक्ट ओवर हियर इज A choice। ठीक है स्टूडेंट्स, अब I hope you understood this part students clearly। So here the answer will be A choice only। Now next paragraph only, it is based upon chemical reactions and that to what? Please read this, this is fully based upon electrochemistry। This question was fully based upon electrochemistry, a very simple question, lot of theory to read, but we know very well what is it in electrochemistry part। If at all we have to do questions over here, use what concept? The point over here is number of equivalents is equal to number of Faradays, number of equivalents is equal to number of Faradays। और यहां पर क्या दिया है, 4 मोलार सोल्यूशन 500 ml, इसे लीजिएगा 4 मोलार सोल्यूशन एंड 500 ml सोल्यूशन है, तो हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस निकाल लेंगे। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स Cl माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। Why? Because 1 mole NaCl contains 1 mole Cl minus। So number of moles of NaCl is equal to molarity into volume in liters। मोलारिटी कितना दिया है स्टूडेंट्स, 4 मोलार था, वॉल्यूम कितना था 500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 2 moles। So number of moles NaCl is equal to number of moles Cl minus, which is going to be equal to 2। अब 2 moles Cl minus लिबरेट होके Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो यानी कि 1 मोल क्लोरीन बना और 2 फैराडेज है,
2 फैराडे का मतलब क्या हुआ? 2 फैराडे मीन्स 2 into 96500, that is equal to 0, 0. 2 5s are 10, 1, 3, 18 plus 1, 19, 193000 coulombs. यानी कि अगर अब हम क्वेश्चन के अंदर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ गया, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड इज 1 mole. Why? Because 2Cl minus will give rise to Cl2 plus 2 electrons. And 2 Faraday of electricity. 2 Faraday of electricity means 96500 into 2. Therefore, answer for the second question over here, in this case, answer is definitely 193000 coulombs of electricity. So I think so, students, the discussion was fairly useful. Again and again I am saying, don't use hit and trial methods. Solve it properly. In the examination hall, if you are not able to solve it properly also, please solve it once again on your own and write, especially numericals. Write, don't do mental calculation. Organic, write. Just don't do, हाँ ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ऐसा नहीं. Please do them properly. Thank you, students. All the best for you.